So now today we will discuss what? We will discuss your Krebs TCA cycle. Okay? तो इसको Krebs apostrophe s नहीं लिखना because उनका जो नाम है वो है Hans Krebs. तो S is a part of his name. तो इसलिए हमें उनके पीछे apostrophe देना पड़ता है जिसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? Krebses. ओके? सो दैट इज द कंसेप्ट. तो इसलिए हम लोग चले जाएंगे क्रेब्स टीसीए साइकिल में. ओके, नाउ आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस, ओके, सेल respiration is completed in 3 stages. Okay, after glycolysis, okay, the cell respiration is completed in 3 stages. Okay, the cell respiration process, the cell respiration process is completed in 3 stages. तो सबसे फर्स्ट क्या होता है? In the first, organic fuel like glucose, fatty acid, etc. are oxidized to yield 2 carbon fragments. Okay, 2 carbon fragments known as, okay, in the form of acetyl group, okay, acetyl coenzyme A. ठीक है, तो ये जो एसिल कोएंजाइम ए है ये आपका आता है. नाउ इन द सेकेंड स्टेज, तो सेकेंड स्टेज में क्या होगा? ओके, द एसिटिल ग्रुप्स ऑफ आर फेड इनटू द साइट्रिक एसिड साइकिल. इसको साइट्रिक एसिड साइकिल या टीसीए साइकिल भी बोलते हैं. ठीक है जी. नाउ tricarboxylic acid cycle, which enzymatically oxidizes them to CO2. Okay, the energy release is conserved in the reduced electron carriers. ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कौन कौन सा? NADH and FADH2. Okay. Now, in the third stage, okay, in the third stage, क्या होता है? Of respiration, these reduced coenzymes are themselves oxidized, giving up protons. ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे S. Okay, protons and electrons. Okay, and electrons. ठीक है, in the third stage of respiration, these reduced coenzymes, okay, are themselves oxidized, giving up protons and electrons. The electrons are क्या? Transferred to O2. So what is O2? जो final acceptor है via a chain of electron carrying molecules known as the respiratory chain. Now उसके बाद, okay, respiratory chain, in the course of electron transfer, the large amount of energy released is conserved, okay, in the form of ATP, okay, in the form of ATP by a process called oxidative oxidative phosphorylation, not photophosphorylation. ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. ठीक है, तो ये हमारा जो है स्टेप्स है. क्लियर? चलिए, तो ये हमारा ग्लाइकोलाइसिस के बाद का स्टेप है. तो इसलिए सबसे पहला स्टेप क्या आ जाएगा? द फर्स्ट स्टेप इज एक्चुअली क्रेब्स साइकिल.
ओके, और वी कैन कॉल इट क्या, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है जी। Krebs cycle या TCA cycle. So this is called tricarboxylic acid cycle. Okay. Okay, चलिए. So now आप Krebs cycle में चलेंगे. We consider first the conversion of pyruvate to acetyl coenzyme है. तो ये जो है स्टेप, ये आपका बिफोर क्या होगा, बिफोर रिएक्शन होगा। ठीक है जी। So we consider the first conversion of pyruvate to acetyl coenzyme A, then the entry of those groups in the citric acid cycle, okay, is also called tricarboxylic acid cycle. तो उसको आप TCA साइकिल बोलो या साइट्रिक साइकिल बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। क्लियर now, or Krebs's cycle after is discovered, hence A. Krebs. तो उनके जो डिस्कवरर हैं उनका नाम है हैंस ए क्रेब्स। तो इनके नाम पे ये पाथवे रख दिया गया। ओके, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे। ट्राई का कैपिटल कर देते हैं। ओके, चलिए, सो ये हमारा हो गया। नाउ we next examine the cycle reactions and the enzymes that catalyze them, because intermediates that, okay, intermediates, because it's intermediates of citric acid cycle, okay, are also siphoned off as biosympathetic, okay, as siphoned as a biosynthetic precursors. ओके, तो इसके लिए बहुत सारा चीज हमें चाहिए, तो ये उसके प्रिकर्सर्स की तरह यूज करते हैं। वी go on to consider some ways in which these intermediates are replenished. Okay, now the citric acid cycle is a hub or in metabolism. ठीक है, ये एक hub in metabolism है with degradative pathways. ओके, तो इसमें क्या हुआ, ओके, सो ये जो आपका है द साइट्रिक एसिड साइकिल is a hub in metabolism with degradative pathways leading in and anabolic pathways, okay, leading out, and it is closely regulated in coordination with other pathways. चलिए, so the chapter ends with a description of the glyoxylate pathway. What is called glyoxylate pathway बोलो? बताइए, ग्लाइकोसिलेट पाथवे को हम क्या कहते हैं? चलिए, सो दैट इज द कंसेप्ट, ए मेटाबॉलिक सीक्वेंस in some organisms that employs several of the same enzymes than reactions used in citric acid cycle. Okay, ठीक है जी, देख रहे हो? तो इसलिए the citric acid is a hub of metabolism with degradative pathways leading in the anabolic pathways leading out, and is closely regulated in coordinating with the activities. ओके, अब ये ग्लाइकोलाइसिलेट पाथवे होगा, ब्रिंग अबाउट द नेट सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड्स। ओके, तो इसीलिए द चैप्टर एंड्स विद द डिस्कस, तो हम लोग का ग्लाइकोलाइसिलेट पाथवे
शायद नहीं है, इसलिए मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूं। ओके, so the chapter ends with description of the glycosylated pathway, a metabolic sequence in some organisms that employs several of the same enzymes and reactions used in TCA cycle and respiration। ठीक है जी, तो इसलिए ये हमारा जो कंसेप्ट है, तो ब्रिंगिंग अबाउट द नेट सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टोर्ड ट्राइग्लिसराइड्स। तो इसलिए अगर आपको ट्राइग्लिसराइड्स है, तो अगर हमें चाहिए तो हम उसको बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिलेट पाथवे। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग थोड़ा जाएंगे। अब हम लोग घुसते हैं इसके डिटेल में। तो द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड क्या? प्रोडक्शन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए। ओके, सो क्या होता है बोलो, ये कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? बोलिए। तो व्हाट इज दिस रिएक्शन नोन एज? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, बिकॉज वहां दो दो हाइड्रोजन निकल रहा है। फाइन, तो अब हम लोग चलते हैं। सो अब हम लोग चले जाएंगे किधर? नेक्स्ट स्टेप इज पाइरुवेट या पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन, तो ये एक्चुअली हमारा है स्टेप 2 या स्टेप बी। ओके, पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब उसको हम इनएक्टिवेट कर देंगे। चलिए, सो अब इस पे चला जाए हम लोग का। सो इन एरोबिक organisms, glucose and other sugars, fatty acids and most amino acids are ultimately oxidized to CO2 and water via citric acid cycle and the respiratory chain. Okay, before entering the citric acid cycle, the carbon skeletons of sugar and fatty acids are degraded to the क्या? Acetyl group of acetyl coenzyme A, the form in which the cell cycle accepts most of its fuel input. Many amino acid carbons also enter the cycle way through several amino acids and are degraded to other cyclic intermediates. तो समझ रहे हो? इसीलिए एक बार हमारे पास एसिटिल कोएंजाइम में आ गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एनर्जी चाहिए तो एनर्जी बना लेंगे, नहीं चाहिए तो हम उसको फैट या अमीनो एसिड बनाकर भी सेव कर सकते हैं। सो वी कैन सेव इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। चलिए, सो ना हम लोग फोकस करेंगे कि पाइरुवेट जो है वो काम कैसे करता है। ओके, सो दैट इज अ कंसेप्ट। तो इसीलिए वी विल नाउ फोकस ऑन ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट। ठीक है, तो अभी हमारा जो पूरा फोकस है वो कहाँ होगा? ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट। चलिए, सो here we focus on how pyruvate derived from glucose and other sugars by glycolysis. Okay, is oxidized to acetyl coenzyme A and CO2 by कौन सा एंजाइम? पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेशन कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं?
pyruvate dehydrogenation complex. ओके, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेशन कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम का नाम क्या है? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। ये एक एंजाइम नहीं है, एक क्लस्टर ऑफ एंजाइम्स, मल्टीपल कॉपीज ऑफ ईच ऑफ द 3 एंजाइम्स। तो इसमें 3 एंजाइम्स हैं बेसिकली, मल्टीपल कॉपीज ऑफ थिंग्स लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है जी। तो इसलिए एक चीज याद रखिए, अगर आपको पायरुवेट से आगे जाकर CO2 एंड वाटर बनाना है तो आपको बहुत सारे मल्टी स्टेप रिएक्शन चाहिए, मल्टी स्टेप रिएक्शन काम करने वाला लोकेशन चाहिए। ओके, प्लस आपका एंजाइम्स भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के चाहिए। एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज ए मस्ट। सपोज आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ये नहीं हो सकता। सपोज आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो है, ऑक्सीजन नहीं है तो भी ये नहीं हो सकता, एंड सो ऑन। सो वी हैव डेफिनाइट प्रॉब्लम्स या रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे चलेंगे तो ये क्या क्या करता है। अंडरस्टूड? चलिए तो अब हम लोग चले जाएंगे पायरुवेट का जो पहला स्टेप है हमारा, दैट इज कॉल्ड पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, सो हमारा स्टेप चला जाए तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे? सो द ओवरऑल रिएक्शन कैटलाइज्ड, ओके, द ओवरऑल रिएक्शन catalyzed by the pyruvate dehydrogenase complex in oxidative phosphorylation, oxidation, an irreversible oxidation process in which the carboxyl group is removed from pyruvate as a result molecule of CO2, and the 2 remaining carbons become acetyl coenzyme। ठीक है, तो उसका जो हमारा एक शुगर को हटा देते हैं, एक पीस को। ओके, सो व्हाट विल हैपन हियर? तो इन केस द ओवरऑल रिएक्शन जो है ये पीडीएच कॉम्प्लेक्स करता है, एंड ये क्या करेगा? ये आपका तोड़ देगा पायरुवेट को इनटू एसिटिल कोएंजाइम प्लस CO2। ओके, सो ये हमारा रिएक्शन है। नाउ इस रिएक्शन को हम लोग लिखेंगे। ओके, सो सिंपल सा रिएक्शन है, इसको हम लोग लिख लेंगे। तो आई विल जस्ट पेस्ट इट, क्योंकि इक्वेशन लिखना इसमें इतना आसान नहीं है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल पेस्ट द डायग्राम। ओके, चलिए इसको पेस्ट किया जाए। ब्राइटनेस, चलिए तो ये हमारा वो स्टेप है ना, दिस स्टेप, दिस इज द स्टेप। ओके, ये हमारा स्टेप है। तो व्हाट आर यू सीइंग हियर? तो ये पायरुवेट है, तो पायरुवेट देख रहे हो कि नहीं? एक्चुअली इसका कैन यू टेल मी इट्स क्या आईयूपैक नेम? गेस करो। इसका आईयूपीएसी नेम गेस करिए। से 2-ऑक्सोप्रोपेनोइक एसिड। बस, तो इधर आप ऑक्सो करो, कीटो करो, तो 2 कीटो या 2 ऑक्सो प्रोपानोइक एसिड। नहीं तो आप समझोगे नहीं ना कि हुआ क्या। तो ये जो CO2 है, COH, ये निकल जाता है। तो आपको और क्या क्या देना पड़ेगा? कोएंजाइम ए देना पड़ेगा, NADPH देना पड़ेगा, तो ये NADH बन के बाहर निकल जाएगा। एंजाइम कौन सा है इसमें? दैट इज कॉल्ड योर
पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये हमारा ऑलरेडी हमने एंजाइम लिखा हुआ है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज क्या कॉम्प्लेक्स। फाइन, तो ये हमारा एंजाइम है। नाउ टीपीपी एंड लाइपोइड एंड एफएडी ये तीनों कोफैक्टर्स है। क्लियर? नाउ तो ये हमारा हो गया पायरुविक, तो वी हैव कन्वर्टेड पायरुवेट टू एसिटिल कोएंजाइम। नाउ अब ये जो रिएक्शन है ये आगे डिपेंड करता है कि इसके साथ क्या होगा। ठीक है जी। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, तो एक बार ये हो गया, सो नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड व्हाट? सो द नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड द क्रेब्स साइकिल। ओके, तो ये हमारा स्टेप 2 हो गया। इसको लिंक रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलिए? सो दिस रिएक्शन, okay, this reaction या path, this reaction या path is also referred to as a link reaction. okay, इसको हम लोग एक link reaction बोलते हैं। okay, so this the reaction path is also referred to as, the reaction or pathway is also referred to as link reaction because it connects the cytoplasm and mitochondria। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया को कांटेक्ट में लाता है। ठीक है जी, इसलिए हम लोग इसको लिंक रिएक्शन बोलते हैं। नाउ ये एक नोट हो गया। नाउ नेक्स्ट नोट क्या है? नाउ एसिटिल कोएंजाइम ए। ओके, तो एसिटिल कोएंजाइम ए हैज, तो इधर वो कहाँ जाएगा, तो एसिटिल कोएंजाइम में हैज क्या बोलिए, डिफरेंट पाथवेज, ओके, एंड डिफरेंट सोर्सेस। ठीक है, तो इट कैन बी obtained by the क्या बीटा oxidation of fats। okay, it can be obtained by beta oxidation of fats, okay, or क्या deamination of the क्या L amino acids। ठीक है, तो ये जो आपका माने ऑक्सीजन फैट्स एंड ओके एंड deamination of the L amino acids। ठीक है, तो हम कहीं से भी ये ला सकते हैं। नाउ acetyl coenzyme A so produced can number A enter Krebs's cycle and ये क्या करेगा, Krebs cycle में घुस जाएगा and produce एनर्जी। नंबर बी क्या है, और क्या कर सकता है, इट में बी कन्वर्टेड टू फैट्स। ओके, इट कैन बी कन्वर्टेड टू फैट्स। तो इसलिए आप एसिटिल कोएंजाइम ए को लेकर फैट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इट में बी कन्वर्टेड टू फैट्स। नाउ it may also be used to produce क्या amino acids। ठीक है, तो इसलिए इसका ये जो एसिटिल कोएंजाइम ये निकला, इसका बहुत सारा पाथ है।
चलिए, तो अब हम लोग घुसेंगे, क्रेब्स साइकिल बनाएंगे। नाउ पाइरुवेट टू क्या, पाइरुवेट टू NaDH, ओके, पाइरुवेट टू NaDH via Krebs's साइकिल। ठीक है, तो इधर एक्चुअली दो दो चीज हो रहा है, एक तो जो एनर्जी मिल रहा है, दूसरा हम इसको NaDH में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये फिर आगे जाके एनर्जी देगा। ओके, ये एक इंटरमीडिएट स्टेप है। चलिए, सो नाउ वी विल पुट द रिएक्शन, उस क्रेब्स साइकिल का पेस्टिंग करेंगे, एक अच्छा सा डायग्राम ढूंढेंगे एंड उसको पेस्ट करेंगे। आई होप दिस इज गुड, ये वाला ले लेते हैं। नाउ सो अब इसको देखिए ध्यान से, चलिए, सो नाउ लेट अस सी दिस डायग्राम। सी, ये एक पाथवे है। पाथवे का मतलब क्या है, साइक्लिक पाथवे। साइक्लिक पाथवे का मतलब क्या है, ये कहीं से भी शुरू हो सकता है। तो इसलिए हम लोग कहाँ से शुरू कर रहे हैं, हम लोग शुरू करेंगे अपना एसिटिल कोएंजाइम ए से। ओके, सो वी विल स्टार्ट द रिएक्शन विथ एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए क्या होता है, ये 2 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, सो दिस इज ए 2 कार्बन कंपाउंड, फाइन। तो अब हम इधर से जोड़ेंगे एक 4 कार्बन कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड ऑक्सैलोएसीटेट। ठीक है, तो इधर आप देखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक कंपाउंड आया है ऑक्सैलोएसीटेट, इसमें 4 कंपाउंड है, तो 4 + 2 बन जाएगा क्या, एक 6 कार्बन कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड साइट्रेट। फिर साइट्रेट इज आइसोमराइजिंग इनटू आइसोसाइट्रेट। ठीक है जी, तो इसमें मैं नंबर ऑफ कार्बन लिख दे रहा हूं क्योंकि ये आपको काम देगा बाद में। तो इसमें आपका है 2 कार्बन, ऑक्सैलोएसीटेट में 4 कार्बन, साइट्रेट में 6 कार्बन, आइसोसाइट्रेट में 6 कार्बन। तो है समझ? ये जो आइसोसाइट्रेट है, या हम लोग क्या करेंगे, उसमें से एक CO2 निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है, इसमें कितने कार्बन हैं, बोलिए? तो इसमें आपका हाउ मेनी कार्बन्स, बोलो? तो 6 में से एक चला गया, सो दिस इज 5 कार्बन। ओके, यहां से आपने एक CO2 निकाल दिया। फिर आप यहां से क्या कर रहे हो, यहाँ आप कोएंजाइम में ऐड कर रहे हो। तो वी आर एडिंग कोएंजाइम ए, तो ये आपका बन जाएगा क्या, सक्सिनिल कोएंजाइम ए। तो इसमें भी क्या हो जाएंगे, फाइन। तो दिस इज ऑल्सो द, कहाँ चला जाता है ये कर्सर। सो दिस इज ऑल्सो 5 कार्बन। फिर ये बनता है सक्सिनेट। यहाँ क्या होता है, तो इधर भी आपका एक कोएंजाइम में चला जाता है, एंड इधर सॉरी सॉरी ये क्या कर दिया हमने, तो ये देखिए यहाँ 5 कार्बन है, हमने यहाँ से भी एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, तो अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है उसमें से भी हमने कार्बन निकाला। तो जैसे हमने कार्बन निकाला, तो ये क्या बन जाएगा, 4 कार्बन, ये भी क्या बन जाएगा,
4 कार्बन, ये भी क्या बन जाएगा, देख रहे हो, 1 2 3 4 कार्बन, एंड अल्टीमेटली ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा, वो भी बन जाएगा क्या, 4 कार्बन। तो मैलेट इज ऑल्सो 4 कार्बन। समझ में आया? तो इसीलिए यहाँ क्या हो रहा है, देयर आर 2 स्टेप डाउन रिएक्शंस। ओके, एक 6 से 5 बनाता है, एक 6 से 4 बनाता है पानी। ओके, एक 6 से 5 बनाता है, एक 6 से 4 बनाता है। फाइन, तो 2 स्टेप डाउन रिएक्शन हो रहा है। नाउ यहाँ एक जगह पर देखिए NaDH निकल रहा है, तो थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड आपका 8th स्टेप। तो इसलिए ये सब चीज आपको लिखना जरूरी है। तो NaDH कहाँ मिलता है, थर्ड, फोर्थ एंड 8th स्टेप। ओके, तो यहाँ आपको NaDH मिल रहा है। नाउ FADH2 कहाँ मिल रहा है, तो FADH2 मिल रहा है 5th स्टेप। फाइन, तो FADH2 मिल रहा है 5th स्टेप में। तो इसलिए यहां से क्या होगा, थर्ड फोर्थ 8 मतलब 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 कितना होगा, 6 3 जा 18 ATP मिलेगा। समझ रहे हो? तो अगर ये NaDH2 को हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 18 ATP। 5th स्टेप में हमें FADH2 मिलता है, ये आपका मिलेगा क्या, 2 इंटू 2 4। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए, 3 इंटू 6 इज इक्वल 3 इंटू 2 कर दो, 3 इंटू 2 इंटू 3। समझ रहे हो? तो 3 आपके एटीपी मिलते हैं, 2 आपका पाइरुवेट है, एंड 3 आपका क्या है, बोलिए, 3 आपका NaDH बन रहा है। सो टोटल 18 एटीपी का गेन है। यहाँ आपका क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 एटीपी। ओके, तो 2 इंटू 2 जो है आपको यहाँ 4 एटीपी मिल रहा है। ओके, प्लस ये दोनों है क्या, ये दोनों है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ओके, इस केस में भी क्या है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। बट नेक्स्ट केस जो है ये आपका सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन है। तो ये कौन से स्टेप में हो रहा है, अगेन 5th स्टेप में। ठीक है, तो 5th स्टेप जो है, 5th स्टेप, तो यहाँ आपका सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन बन रहा है। ये शायद 6th स्टेप है हमारा FADH2 वाला, ये 6th स्टेप है। तो 5th स्टेप में आपको SLP मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 2 इंटू 2। ओके, सॉरी क्या, 2 इंटू 1। ओके, 2 इंटू 1 मिल रहा है, दिस इज इक्वल टू 2 ATP। तो आया समझ? सो इसलिए नेट गेन हमारा क्या हो गया, फ्रॉम क्रेब्स साइकिल 18 प्लस 2 20 प्लस 4 24। ठीक है, तो हमारा जो क्रेब्स साइकिल है उसमें गेन हमारा कितना हो रहा है, 18 20 4 24। फिर पायरुविक डिकार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ, इसको हम लोग पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेशन कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, बोलिए, तो जहां भी हमारा तो NaDH बन रहा है, तो इधर हम लोग लिखेंगे नेट आउटपुट इज इक्वल टू 2 NaDH, जो कि आगे जाके देगा क्या, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 ATP। समझ रहे हो, कोई शक? नो सर। सो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 ATP। तो उधर आपका बन गया 24, इधर आपका बन गया 6,
ग्लाइकोलाइसिस में कितना था 8, तो टोटली बन गया 38. अंडरस्टैंड? सो दिस इज द केस. अब ये सेम चीज हम लोग एक बार खुद बनाते हैं, तो जब हम लोग खुद बनाएंगे तो हमें याद रहेगा. तो हाउ टू मेक इट मैं आपको सिखा देता हूं. तो अगेन Krebs's cycle. Okay, this is handmade. ओके, तो Krebs's साइकिल इसकी हमारा हैंडमेड साइकिल है. फाइन. नाउ तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कलवा लेंगे. विल टेक एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे. ओके, अंडू थोड़ा मोटा लाइन ले लेते हैं, कलर चेंज कर देंगे एंड मोटा लाइन ले लेंगे. फाइन. तो ये हमारा हो गया एक बड़ा सा क्या सर्कल. नाउ अब हमारा पहला कंपाउंड क्या है, बोलिए. तो व्हाट इज आवर फर्स्ट कंपाउंड. अरे क्या बना हमारा पिछले रिएक्शन से, एसिटिल कोएंजाइम ए. ठीक है, तो ये हमारा एसिटिल कोएंजाइम ए है. नाउ ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए है ये आपका क्या, नाउ चेंज द कलर. तो अब ये जो है ये इस रिएक्शन के साथ मर्ज होगा एंड इधर से ऑलरेडी वो रिएक्शन आ रहा है. ठीक है जी. तो दिस इज कमिंग. तो क्या आ रहा है भैया उधर से, सो तो दिस इज कॉल्ड योर व्हाट, बोलो. तो ये कौन सा है स्टेप,